नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर विधायक नितिन नवीन पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। दिल्ली से पटना आगमन के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पटना एयरपोर्ट से नितिन नवीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनकी भव्य रोड शो की शुरुआत हुई। रथ पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। जगह जगह पुष्प वर्षा और स्वागत द्वार लगाए गए थे, जिससे ये रोड शो एक बड़े राजनीतिक उत्सव का रूप लेता दिखा। पटना में 6 किलोमीटर के लंबे रोड शो के बाद वे मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में पहुंचे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के कोलंबो दौरे के दौरान चक्रवात दितवाह से हुए भारी नुकसान से उबरने के लिए 3,700 करोड़ रुपए के बड़े सहायता पैकेज की घोषणा की है। ये सहायता भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का मजबूत उदाहरण मानी जा रही है। जयशंकर ने कहा कि भारत संकट की घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है और उसके दीर्घकालिक पुनर्निर्माण में हर संभव सहयोग करता रहेगा। इस दौरान विदेश मंत्री ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके और प्रधानमंत्री हरिणी अमर सूर्या से मुलाकात की है और भारत की ओर से एकजुटता का संदेश दिया। Overall, Operation Sagar Bandhu delivered over 1,100 tons of relief material, including dry rations, tents, tarpaulins, hygiene kits, essential clothing, and water purification kits. About 14.5 tons of medicines and medical equipment were also provided. Yet another 60 tons of equipment was brought to Sri Lanka to assist the relief operations. Recognizing the urgency of rebuilding, Prime Minister Modi directed that we now engage with the Sri Lankan government to address their priorities in that regard. The assistance package that we have proposed is worth 450 million US dollars. It will include US dollars 350 million in concessional lines of credit and US dollars 100 million of grants. This package is being finalized in close consultation with the government of Sri Lanka. Our assistance will cover sectors worst affected by the cyclone, including 1. Rehabilitation and restoration of road, railway, and bridge connectivity. 2. Support for construction of houses fully destroyed and partially damaged. 3. Support for health and education systems, in particular those that have been damaged by the cyclone. 4. Agriculture, including to address possible shortages in the short and medium term. And 5. Working towards better disaster response and preparedness. We are conscious that work towards mitigating the impact of Cyclone Ditwa on the people of Sri Lanka must be done in the quickest time possible. We are discussing an effective coordination mechanism for earliest possible delivery. Let me also add that there are other ways by which India can and will be of support to Sri Lanka. You are a significant tourism economy, and Minister, let me assure you that we will continue to encourage tourism. बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की घटना को लेकर भारत में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इस घटना के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन और विरोध दर्ज कराया जा रहा है। नाराजगी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है, बल्कि अमेरिका में भी इस घटना को लेकर
प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रयम ने अलग अलग बयानों में जताया कि हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर हिंसा की घटनाओं से खतरनाक अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा के कदम उठाए जाएं, हत्याओं की पारदर्शी जांच की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को न होने दिया जाए। Mr. Speaker, I rise to speak out against the violence and persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh. During Bangladesh's War of Independence in 1971, an estimated 300,000 to 3 million people were killed, mostly Hindus. Hindus in Bangladesh continue to be targeted today, with their homes and businesses being destroyed and their temples vandalized. Since the ousting of the former Prime Minister last August, these attacks have increased again, with over 2,000 incidents reported in August alone. I've engaged with the State Department and called for action in upcoming Senate confirmation hearings, but we must do more. I urge my colleagues to act now to protect Bangladesh's religious minorities. The world is watching, and we cannot. इधर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को संभावित प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में आगे करने की वकालत के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर किसी की अपनी मांग होती है। कई लोग कहते हैं कि प्रियंका आगे आए, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, लेकिन आज जरूरत है कि देश के असली मुद्दों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व को लेकर होने वाली चर्चा से ज्यादा जरूरी है कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता मिले। अरावली रेंज को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर जयपुर में पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा द्वारा खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए अरावली जैसी जीवन रेखा के लगभग 90% हिस्से पर प्रहार किया जा रहा है, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है तब से संगठित गिरोह के रूप में देश की खनिज संपदा को लूटने का काम कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना, केवल माफियाओं के हित में कार्य करना, यही इनकी नीति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, उनकी स्वायत्तता को खत्म करना, केवल और केवल जो माफिया हैं उनके हित के लिए कार्य करना, ये इनकी नीति रही है कि किस तरीके से संगठित गिरोह के रूप में इस देश की खनिज संपदा को लूटने के लिए काम कर रहे हैं। जो नया ताजा मामला आया है कि ये अरावली को ही लूटने का षड्यंत्र इन्होंने पूरा कर लिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट इन्होंने केंद्र सरकार के दबाव से दिलवाई है, उसके बाद में ये स्पष्ट हो गया है कि खनन माफियाओं के लिए उन्होंने 90% हमारी अरावली जो हमारी जीवन रेखा है, हमारे लिए पर्यावरण हो
चाहे धूल भरी आंधियों से हमें बचाने की बात हो, चाहे हमारे लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो, चाहे हमारे किसानों की पशुधन की आजीविका के रूप में वो लोग बाग इसका काम लेते हों, उनके सबके ऊपर कैच चलाने का, हथौड़ा चलाने का काम किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 20/11/25 का, उसके बाद में 90% अरावली समाप्त हो जाएगी, खनन माफियाओं के हवाले कर दी जाएगी। ये प्रयास काफी दिनों से इनके द्वारा किए जा रहे थे। सोची समझी साजिश के तहत केंद्र में राजस्थान से, अलवर से जीते हुए माननीय सांसद भूपेंद्र यादव जी को मंत्री बनाना, वहीं से अलवर से ही संजय उनका मंत्री बनाना और एक पर्ची से अनुभवहीन व्यक्ति को सत्ता सौंपना, जिससे वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सके और राजस्थान के साथ में न्याय नहीं कर सके। जो केंद्र जो मनमानी करे, उस मनमानी में हंसकर के सहयोग करे, इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर राजस्थान में कर दी गई। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि आज राजस्थान में माइनिंग मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, और इस पूरी की पूरी अरावली को, जो हमारी आस्था, हमारी जीवन रेखा, उसको खत्म करने की दिशा में ये लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। इनका ये कहना है 0.191 में ही खनन होगा, लेकिन ये भूल रहे हैं 68,000 एकड़ विशाल क्षेत्र खनन माफियाओं। उधर यूपी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए एक पारिवारिक दलों का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी का पीडीए समय समय पर बदलता रहता है। आजम खान के होते हुए भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब सपा ने पीडीए का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने कहा कि यूपी का अध्यक्ष होना गौरव का विषय है। पूरे देश की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश है। मेरे काम करने का तरीका, 35 साल का अनुभव है कि सबको लेकर मैं चलता हूं। मेरी टीम के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। यही तो मेरे दल की खूबसूरती है भाइयों, कि भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि जिसकी जहां आवश्यकता हो पार्टी उसको इस्तेमाल करती है। हमारी आवश्यकता उत्तर प्रदेश में थी, हमें उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकता देश में थी, वहां उनको चार्ज मिला। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो दूसरे दल के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या सपा के लोग हों, अगर मुझे यहाँ पर किसी को अध्यक्ष बनना हो तो मुझे लगता है कि उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनके खानदान में फिर से जन्म लेना। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार का इंतजार था, पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा था, वो आखिरकार बीएमसी चुनाव की दहलीज पर हकीकत बन गया है। सालों की सियासी कड़वाहट और दूरियों को पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। इस ऐतिहासिक महामिलन पर मुहर लगाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने दोनों भाइयों की एक साथ तस्वीर साझा की है। संजय राउत ने इस गठबंधन को लेकर राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि दिलों का मिलन करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मेल मिलाप की नींव तब पड़ी थी जब दोनों भाई स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी थापने के लिए सरकार के फैसले के खिलाफ एक सुर में खड़े हुए थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अघाड़ी के तहत शरद पवार की एनसीपी के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में है। हालांकि कांग्रेस के साथ फिलहाल औपचारिक चर्चा रुकी हुई है, लेकिन रावत ने भविष्य में सहयोग के द्वार खुले रहने के भी संकेत दिए।
राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी के मकान पर नगर परिषद कार्रवाई की तैयारी कर रही है। परिषद ने बिना कन्वर्जन बने इस मकान को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर परिषद ने 18 दिसंबर को आरोपी के मकान पर नोटिस चस्पा किया था। नोटिस में ये बताया गया था कि ये मकान बिना कन्वर्जन और तत्कालीन भवन विनिमय नियमों के विपरीत अवैध रूप से निर्मित किया गया है। ख्वाजा साहब की 814वें उर्स पर बड़ी संख्या में जियारत के लिए जायरीन पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ वीआईपी चादर का दौर भी जारी है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दरगाह में चादर पेश की गई। रक्षा मंत्री की चादर लेकर दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा के नेता मुनव्वर खान पहुंचे, जहां खादिमों की ओर से उनका स्वागत भी किया गया। मुनव्वर खान ने रक्षा मंत्री की चादर पेश कर बुलंद दरवाजे पर राजनाथ सिंह का संदेश भी पढ़ा। इस मौके पर देश में अमन, चैन, शांति, भाईचारा बने रहे, इसे लेकर भी दुआ की गई। इस दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से चादर कल पेश की जाएगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी चादर को लेकर दरगाह पहुंचेंगे। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के आने वाले 2 दिन के महीने के मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एकादशी, द्वादशी और नया साल पर लगने वाले इस मेले में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ये मेला 29 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलेगा। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने भारत के साथ हुए नए मुक्त व्यापार समझौते पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे बुरा सौदा करार दिया है। उनके मुताबिक इसमें न्यूजीलैंड के लिए बहुत कम फायदे बदले बहुत कुछ दे दिया गया है। पीटर्स ने कहा कि उनकी पार्टी न्यूजीलैंड फर्स्ट इस समझौते के सख्त खिलाफ है। संसद में इसके कानून बनने के खिलाफ वोट करेगी। पीटर्स का मानना है कि यह समझौता न तो मुक्त है और न ही निष्पक्ष है। उन्होंने चिंता जताई, ये न्यूजीलैंड के आर्थिक और मजदूरों के हितों को ठीक से रक्षा नहीं करता। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर भाजपा पर आरोप लगाया है कि वे इस केस के सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबको उर्मिला सनावर की वीडियो दिखाई। फिर उन्होंने पीएम मोदी से इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी में अगर 10 दिनों के अंदर सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं होती तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। आप लोग को इस वीडियो में जो कहते हुए जो कह रही हैं, ये स्वयं को सुरेश राठौर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में विधायक थे, उनकी पत्नी के रूप में ये अपना परिचय देती हैं और ये कहती हैं कि सुरेश राठौर जी के ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके पास हैं, जो वो भी सोशल मीडिया में है, लेकिन वो बहुत ही
इस तरह के हैं कि हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। हम कांग्रेस के इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उस तरह की हल्की बातों के लिए यहाँ पर नहीं करना चाहते जो इन दोनों के बीच की बातें हैं, और सामाजिक रूप में उसको दिखाना भी बहुत बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। मेरे पास तो नहीं है ऐसा दिल कि मैं इस तरह की नंगाई को दिखा सकूं जो दोनों के बीच की बातें हैं। लेकिन उस बातचीत में यह है कि सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नीयति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। साथियों, एक चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब हुआ उस दिन सबसे पहले शक की सुई इस रूप में जागी, ये शक इसलिए जगा कि रात को जब ये 3-4 दिन पहले उसकी वो हो गई थी, मतलब ये पता चल गया था कि वो कहीं गुम है। फिर जब उसकी बॉडी मिली तो उससे पहले ही उस कमरे को, जिस कमरे में होटल के जिस कमरे में वो रेसिडेंस के रूप में उपयोग करती थी, होटल मालिक ने जो कमरा उसे दे रखा था, उस कमरे को बुलडोजर से तोड़ा गया। बुलडोजर से तोड़ने के बाद उस कमरे के जो बिस्तर थे उस कमरे में, उन बिस्तरों को जलाने की कोशिश हुई। वो अधजले जो बचे उनको स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। तो निश्चित रूप में यह शक प्रतीत हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की कोशिश है। उस समय मैं स्वयं हमारे अन्य साथियों के साथ, कांग्रेस के अन्य साथियों के साथ मैं वहां गया और जब मैंने पूरी हकीकत देखी तो मुझे यह शक हुआ कि जो सुबह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि मुख्यमंत्री धामी अपने को वो बता रहे हैं, मतलब धाकड़ बता रहे हैं, कोई हनुमान बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था कि इनके पास इतनी ताकत है कि इन्होंने ऐसे होटल को तोड़ दिया जिस होटल में कांड हुआ। लेकिन मुझे शक इस बात का हुआ कि अगर इनको उस होटल मालिक को नुकसान करना था तो उस होटल मालिक का निजी आवास बुलडोजर से हरिद्वार में था तो बुलडोजर से वहां तोड़ते, उस होटल के उस कमरे को तोड़ने का क्या औचित्य था। तो मुझे शक हुआ कि ये सबूतों को मिटाने की साजिश है और निश्चित रूप में आखिरकार वही सच निकला कि वो कमरा तोड़ने की जो बात थी वो अपने को बलवान दिखाने की बात तो अलग चीज है, लेकिन वास्तविक रूप में सबूत मिटाने की साजिश थी। इन्होंने वो सबूत मिटाए। उसके बाद जब वो सबूत मिटाने पर क्वेश्चन खड़े हुए तो उसमें वहां की जो विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनका नाम आया कि भाजपा की विधायक रेणु बिष्ट ने ऑर्डर किए थे। अभी ये जो मामला एक महिला, दूसरी महिला का इसमें नाम आया है, ये जो महिला नाम ले रही है, एक दूसरी महिला का नाम ले रही है, उनका भी वीडियो आ गया जवाब में। उनका कहना है कि वो काम रेणु बिष्ट ने किया था। भारतीय जनता पार्टी, रेणु बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज दोबारा इतने सालों के बाद इस बात को पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि उस कमरे को तोड़ने के पीछे उनकी जल्दी क्या थी। अब चूंकि उनके नेता का नाम उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक के द्वारा उनके नेता का नाम सामने आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बिहार में हुए बुनियादी और सांस्कृतिक विकास को देखकर काफी प्रभावित नजर आए। नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे थरूर ने खुले मन से स्वीकार किया कि बिहार को लेकर उनकी पुरानी धारणाएं जो हैं अब पूरी तरह बदल चुकी हैं। बिहार की ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक बुनियादी ढांचे की संगम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें पाटलिपुत्र का गौरव, विश्व स्तरीय बिहार संग्रहालय और राष्ट्रपिता को समर्पित भव्य बापू टावर को अवश्य देखना चाहिए। बापू टावर देखने के लिए और आज सुबह बिहार म्यूजियम। तो मैं ये संग्रहालय संस्कृति इस किस्म के विषय के लिए बिहार आया था, राजनीति करने के लिए नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो कुछ मैंने देखा। और मैं सारे भारतवासियों को कहता हूँ कि पाटलिपुत्र आइए, बिहार म्यूजियम देख लीजिए, बापू टावर देख लीजिए, देखने लायक। सर बिहार के ये दुनिया के बेस्ट म्यूजियम्स में 2 है, तो इसलिए मैं कहूँ। बिहार के लाल को बीजेपी ने कार्यकारी लाभ। देखिए, मैं राजनीति नहीं कहना चाहता हूँ।
पार्टी की तरफ। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्या बोलूं। ईडी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद और उनके सहयोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ये कार्रवाई डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़े कथित सरकारी फंड के दुरुपयोग के मामले में की गई है। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने करीब 45.92 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने की मांग की। विशेष पीएमएलए अदालत ने चार्जशीट में संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि मामला विकलांगों को उपकरण बांटने के लिए मिले फंड के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। इधर कांग्रेस नेता और सांसद दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में हुई घटनाओं को भारत में अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचारों का रिएक्शन बताया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, यह हालात जो अपने देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले जो कट्टरपंथी ताकतें जो हैं जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी शर्मनाक है। शर्मा ने आरोप लगाया कि जनता और दुनिया जानती है कि कौन आतंकवाद के साथ खड़ा है और कौन उसके खिलाफ। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता होने के कारण, भूल से मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण भी, राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, वो अलकायदा के एजेंट हैं क्या, या वो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ, बताइए। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कहां पर जो हमला हुआ था, वहां पर जो निर्दोषों को मारा गया, वो कौन सा रिएक्शन था? आतंकवाद का समर्थन करोगे दिग्विजय सिंह जी तो ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है और पूरा विश्व इस बात को जानता है कि कौन आतंकवादियों के साथ है और कौन आतंकवादियों के विरोध में है। और इसलिए तुम्हारा पुराना जो चरित्र है, चाहे वो मोहन शर्मा का कांड हो, तब भी आपने आतंकवादियों का साथ दिया था, एसआईआर मोहन शर्मा का साथ नहीं दिया। बम्बई बम ब्लास्ट में भी आपने आतंकवादियों का साथ दिया था। आपको जब जब भी मौका मिला तो आतंकवादियों को जी कहकर सम्मानित किया। और आज भी आप बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे जलाए जा रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं को में आग लगाई जा रही है, उनके बारे में, उनके समर्थन के बारे में बोलने की बजाय वह आतंकवाद को और कट्टरपंथी इस्लामिक टेररिस्ट को, उनको आप सहारा दे रहे हैं और उनके प्रवक्ता बन रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब कांग्रेस कल जिन्ना के साथ थी, आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इस्लामिक आतंकवाद है उसके साथ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। एआईएडीएमके नेता से मुलाकात के बाद गोयल ने कहा कि बीजेपी, एआईएडीएमके और एनडीए की सहयोगी 2026 का विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की शानदार जीत का भरोसा जताते हुए डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और युवाओं को विकास और रोजगार को लेकर तमिलनाडु तक पहुंच बढ़ाने की बातें कही।
इधर जयपुर में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में राजस्थान के शिक्षा विभाग ने निर्जा मोदी स्कूल को नोटिस जारी किया है। मामले में राजस्थान शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामनिवास शर्मा की कमेटी ने जांच की थी। इसके बाद ये जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और शिक्षा मंत्री को सौंप दी गई थी। इसके बाद स्कूल ने 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी है। इसके साथ ही उन्हें जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, हाईकोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस सुब्रह्मण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह आदेश सेंगर की मेडिकल ग्राउंड पर दाखिल जमानत उनकी याचिका पर किया। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भारतीय क्रिकेट टीम की दमदार खिलाड़ी दीप्ति शर्मा लगातार अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत रही हैं। दीप्ति ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही T20 सीरीज के पहले ही मैच में गेंद से कमाल किया है और इसका असर उनकी T20 रैंकिंग पर भी साफ दिखाई दे रहा है। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिया, जिससे भारत की जीत की नींव रखी। इस प्रदर्शन से दीप्ति को 5 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा हुआ है और वे 737 अंकों के साथ नंबर 1 पर बन गई। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अरावली पर्वतमाला को लेकर उदयपुर में आक्रोश लगातार तेज होता जा रहा है। इसी बीच सैकड़ों लोग जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और अरावली को बचाने की मांग को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गई, जो देखते ही देखते आपसी भिड़ंत में बदल गई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अरावली केवल पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि मेवाड़ की जीवन रेखा भी है। वक्ताओं ने कहा कि मेवाड़ का इतिहास प्रकृति संरक्षण का प्रतीक रहा है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।